Hey everyone, welcome to our channel. This is the lecture number 4 of successive differentiation. यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एन डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर ax मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ bx प्लस c. इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर n मल्टीप्लाई विद e रेज टू पावर ax मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई एन. ठीक है, ये रिजल्ट हमको याद रखना है. हम लोग एक बार प्रूफ देखते हैं. एग्जाम में अगर ये रिजल्ट याद नहीं रहा तो हम लोग डेरिवेशन से डिराइव कर सकते हैं ये रिजल्ट. कैसे? लेट गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, तो हमारी ये फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y एज्यूम करेंगे. तो y विल बी ई रेज टू पावर ए एक्स मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी. क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव. वी हैव डिनोट फर्स्ट डेरिवेटिव एज y1. व्हाट विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव? इट विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी. क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना लोग ये स्टेप में? तो यहाँ पे हम देखो दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्रिक है. तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आई थिंक और सभी को आता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखो ई रेज टू पावर ए एक्स को पहले डिफरेंशिएट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी को एज इट इज रखा. तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स. फिर सेकंड में क्या करेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स को एज इट इज रखेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी. क्लियर? ये स्टेप यहाँ पे हम लोग ने क्या रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई sin of bx plus c. What is differentiation of e raised to power ax? It will be nothing but a e raised to power ax. What we have done, we know the differentiation of e raised to power x, it will be equals to e raised to power x, but it is not in general form. And now we have to differentiate this a raised to ax, it will be equals to a. Now what we are going to do, e raised to power ax, differentiation of sin x we know, it will be equals to cos of bx plus c. Now we have to differentiate this argument part, it will be equals to b. Clear this part? Now we have to write in simplified form. We can take e raised to power ax common. What we get, we get a multiply with sin of bx plus c. Understand this part? Plus here it will be b multiply with cos of bx plus c. Now one important thing what we are going to do here, we are going to substitute what we are going to substitute in place of a, we are going to substitute r cos phi. In place of b we are going to substitute r sin phi. Clear this part? In place of a we have to substitute r cos phi, in place of b we have to substitute r sin phi. What we are going to do, when we square a, when we square a, now we have to square this part, it will be equals to r square cos square phi. When we square this part, it will be equals to squaring both sides. What we get r square sin square phi. Understand what we have done here? We have squared this part, we get this, and we have squared this part, we get a square r square cos phi. But we have to remember this, what we have substitute here, we have substitute a equals to r cos phi, b equals to r sin phi. When we add both these two equation, what we get, a square plus b square, we get r square. We take common r square, we get r square sin square phi plus cos square phi. We know sin square phi plus cos square phi will be equals to 1. We get r square. Now what we get, r in terms of a and b we get. Now we have find we have find r in terms of a and b. Understand this part? Now one thing, divide, when we divide b by a, what we get, r sin phi divided by r cos phi. We cancel out r from numerator as well as denominator. What we get, sin phi divided by cos phi. We know sin phi divided by cos phi, it will be equals to tan phi. Understand this part? What we get, phi will be equals to tan inverse b by a. What we get, 5, it will be equals to tan inverse b by a, and we get r in terms of a and b, it will be equals to under root of a square plus b square.
Now we have to substitute, it will be equals to e raised to power ax. In place of a we have to substitute r cos phi, understand this part, multiply with sine of bx plus c, understand this part. In place of b we have to substitute r sin phi, r sin phi multiply with cos of bx plus c, understand this part. Now what we are doing next, we have to take r common because it will be equals to r e raised to power ax. What we get sine of bx plus c multiply with cos phi. Next will be uh, sine phi multiply with cos of bx plus c, understand this part. Now uh, now what is this, anyone can guess. Sine of bx plus c multiply with cos phi plus cos sine phi multiply with sine of a plus b. Let me write what is sine of a plus b. Let me write what is sine of a plus b. We know sine of a plus b equals to sine a cos b plus cos a sin b, understand this part. This is the formula, sin a cos b. When we substitute a equals to bx plus c, and when we substitute b equals to 5, in place of a and b substitute, what we get bx plus c plus 5. And now open, what we get sin bx plus c multiply with cos 5, and next part will be cos of bx plus c multiply with sin 5, understand. So both expression are same, understand. We can replace with r e raised to power ax, and we can replace this expression with sin of bx plus c plus 5. यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ क्या? तो हम लोग ने ये एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया यहाँ से. फिर नेक्स्ट पार्ट में अभी देखो हम लोग क्या करें, नेक्स्ट पार्ट में फोकस करना. ये तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव. वी हैव फाइंड आवर फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव लेट मी राइट, इट विल बी इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई विद e raised to power ax multiply with sine of bx plus c plus 5. This is our first derivative. Let me write inside in the box, understand. Now when we find second derivative, how to find second derivative, let me revise. When we are finding second derivative, we have to differentiate first derivative. It will be nothing but differentiation of y1. What is y1? Let me substitute, y1 will be r multiply by e raised to power ax multiply with sine of bx plus c plus 5. Here r is constant, we can take it out of the differentiation. What we get d by dx of e raised to power ax multiply with sine of bx plus c plus 5. Here there are two functions, one is exponential, another is trigonometric. What we can use, we can use product rule of differentiation, understand this part. Now what we are going to do, we are going to use product rule of differentiation. What is product rule of differentiation? We have to differentiate first function, and we have to differentiate the first function. What is first function? First function is e raised to power ax, uh, and when we differentiate first function, it will be equals to. And now what we are doing, we are in next part we have to differentiate second function. We can take e raised to power ax as it is, and we are differentiating second function. second function क्या हुआ, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 5. यहाँ तक सभी को क्लियर है. तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है हम लोग को, आर यहाँ पे ई रेस टू पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई विथ ई रेस टू पावर ए एक्स, और यहाँ पे साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 5 एज इट इज. यहाँ तक सभी को क्लियर है. अभी देखो ई रेस टू पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसे है, और देखो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 5. फिर आर्ग्यूमेंट पार्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बी. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर. तो हम लोग क्या करते हैं, आर, ठीक है, आर यहाँ तक ठीक है, क्लियर है. और ई रेस टू पावर ए एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से ई रेस टू पावर ए एक्स, वॉट वी गेट ए मल्टीप्लाई विथ साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 5. एंड नेक्स्ट क्या हम लोग को मिला, हम लोग को बी मल्टीप्लाई विथ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 5. तो हम लोग ने ए और बी क्या अज्यूम किया था, ए और बी हम लोग ने अज्यूम किया था. देखो ए को हम लोग क्या अज्यूम किए थे, ए को हम लोग आर कॉस 5 अज्यूम किए थे. तो ए की जगह आर कॉस 5 सब्स्टिट्यूट करो, आर कॉस 5 सब्स्टिट्यूट किया मल्टीप्लाई विथ साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 5. बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आर साइन 5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. क्लियर हो रहा है क्या?
और सेकंड कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 5 एज इट इज। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो देखो आर और आर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिला आर स्क्वायर, हमको क्या मिला ई रेस टू पावर ए एक्स एज इट इज। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? ये हमारा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव क्लियर हुआ क्या? अगर नहीं क्लियर हुआ तो देखो आप जो पहले वाले स्टेप में बताया तो वहां से चेक करना। यहाँ पे मैंने ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, ए की जगह बी एक्स प्लस सी प्लस 5 सब्स्टिट्यूट किया और बी की जगह 5 सब्स्टिट्यूट किया। तो साइन ऑफ ए प्लस बी एक्सपांड करेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए की जगह बी एक्स प्लस सी प्लस 5 सब्स्टिट्यूट किया, बी की जगह 5। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू पावर ए एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमको हमारा सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। सेकंड डेरिवेटिव व्हाट वी गेट सेकंड डेरिवेटिव इज आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ई रेस टू पावर ए एक्स मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 25। क्लियर यहाँ तक? तो देखो सेकंड डेरिवेटिव ये मिला। अभी हम लोग कुछ पैटर्न नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है, जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किए y1 तो यहाँ पे आर रेस टू पावर 1 था और यहाँ पे 1 5 था। क्लियर हुआ क्या? एक पैटर्न यहाँ पे आर रेस टू पावर 1 है और यहाँ पे 1 5। जब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव हम लोग ने फाइंड किया तो हमको क्या पैटर्न दिखा, लेट मी राइट। तो जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो यहाँ पे आर स्क्वायर मिला और यहाँ पे 25। तो सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, जब मैं थर्ड डेरिवेटिव y3 लिखूंगा तो y3 क्या होगा, आर रेस टू पावर 3 होगा ई रेस टू पावर ए एक्स एज इट इज साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5। क्लियर हुआ क्या? तो सिमिलरली जो nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव क्या होगा, थर्ड डेरिवेटिव के लिए क्यूब होगा तो nth डेरिवेटिव के लिए आर रेस टू पावर n हो जाएगा ई रेस टू पावर ए एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। 3 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे n, देखो थर्ड डेरिवेटिव लिंक आ रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा, nth डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो यहाँ पे n आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो देखो अभी r को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमारा r जो था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला था। कहाँ से मिला था हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग ने r निकाला था, r क्या निकाला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 5 क्या निकाला था tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो r हमारा क्या है, r हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और 5 क्या हमारा tan इनवर्स b बाई ए। ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो r की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, r की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट पुटअप करेंगे, उसके पावर क्या है n। क्लियर, ई रेस टू पावर ए एक्स एज इट इज और साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी और n को एज इट इज 5 की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स b बाई ए। क्योंकि देखो हम लोग ने, देखो हमारा जो आंसर r आ रहा था क्वेश्चन में r तो दिया नहीं था, हम लोग ने अज्यूम किया और यहाँ पे 5 आ रहा है ये भी हम लोग ने अज्यूम किया था। तो जो फाइनल आंसर ए और बी के टर्म्स में आना चाहिए, तो आर की जगह हम लोग ने क्या सब्स्टिट्यूट किया गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 की जगह अंडर रूट tan इनवर्स b बाई ए। तो हमको फाइनल आंसर हमारा क्या मिला, ए और बी के टर्म्स में nth डेरिवेटिव। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये सभी को याद होना चाहिए। लेट मी चेक दोनों मैच हो रहे क्या। ये हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर n मल्टीप्लाई विथ ई रेज टू पावर ए एक्स मल्टीप्लाई विथ साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b बाई ए। तो देखते हैं हमारा जो रिजल्ट लिखा था वेरीफाई हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर n ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b बाई ए। ये डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या? होप दिस क्लियर टू ऑल। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।